Yes, very good morning, boys and girls. Very good morning, boys and girls. Very good morning, boys and girls. जो लोग हैं, very good morning, boys and girls. I welcome you all to a session of secretarial practice. 12th standard secretarial practice आप सभी लोगों का स्वागत है. We have started learning the different provisions of the issue of debentures. Three set of provisions we have to learn about the issue of debentures. The first set of provisions talks about the provisions as given in section number 71. Provisions given in section number 71 of the Companies Act 2013, which states the different provisions which are given in the Companies Act which have to be followed for issue of debentures. The first point was no voting rights, second was types of debentures, payment of interest and redemption, debenture certificate, creation of debenture redemption reserve, appointment of debenture trustee, debenture trust can approach NCLT, impose restriction on the transaction of the business and punishment for contravention of the provision of the Companies Act, right? इसके बाद कल जो मैंने बताया था that was rule number 18 of the Companies Rule 2014. Companies Rule 2014 rule number 18 हमने स्टार्ट किया है. रूल नंबर 18 के चार प्रोविजंस हमने देखे थे रिगार्डिंग इशू ऑफ डिबेंचर्स. व्हाट वाज द फर्स्ट पॉइंट वी सॉ? टेन्योर ऑफ सेक्योर्ड डिबेंचर. व्हाट इज द टेन्योर ऑफ सेक्योर्ड डिबेंचर्स टू बी इशूड इन इंडिया? 10 इयर्स. 10 साल के लिए हमारे पास सेक्योर्ड डिबेंचर्स जो है वो इशू किए जाते हैं, राइट? 10. नेक्स्ट, create a charge on the assets of the company. What is the next point we have? Create a charge on the assets of the company. The debentures which are being issued are secured debentures. The debentures which are issued are secured debentures, and secured debentures have a charge over the assets of the company. Secured debentures are issued with a charge over the assets of the company, and we all know whenever charge is created over the assets of the company, the charge over the value of the asset should be equivalent to the principal as well as the interest to be paid on such debentures. जितने साल के लिए वो डिबेंचर्स इशू किए हैं उतने साल का इंटरेस्ट प्लस डिबेंचर की जो वैल्यू होगी उसके इक्विवेलेंट वैल्यू के एसेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट हो जाना चाहिए, राइट? नेक्स्ट, अगर कोई गवर्नमेंट कोई डिबेंचर्स इशू कर रही है, डेट सिक्योरिटी इशू कर रही है, उस केस उस सिनेरियो में इन दैट केस एंड सिनेरियो no charge is to be created over the assets of the company. Next point was appointment of debenture trustees. अगला पॉइंट था appointment of debenture trustees. अगर कंपनी में 500 से ज्यादा डिबेंचर होल्डर है, ऐसे कंपनियों को कंपलसरी डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना होता है, जिसे हमने ससुर जी की उपमा दी है. अपॉइंट कौन करता है उसे? कंपनी. बट दे वर्क फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स. ससुर जी है पिताजी दूल्हे के, लेकिन किसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं? दुल्हन के, राइट? सो डिबेंचर ट्रस्टीज हैव टू बी कंपल्सरीली अपॉइंटेड बाय द कंपनी. इवन इफ अपॉइंटेड बाय द कंपनी, दे वर्क फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर. द कंपनी हैज टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट व्हिच इज कॉल्ड एज डिबेंचर ट्रस्ट डीड, which is called as debenture trust deed, which is called as debenture trust deed. Okay, and that debenture trust deed has to be executed at the time of appointment, or max to max it should be executed within 60 days from the date of allotment. It should be executed within 60 days of allotment, right? Appointment of debenture trustee के बाद पॉइंट हमने देखा था creation of debenture redemption reserve. अगला पॉइंट जो हमने देखा था it was creation of debenture redemption reserve. Now, what does creation of debenture redemption reserve condition state? That a company should maintain minimum of 25% of balance in its debenture redemption reserve. कम से कम 25% बैलेंस जो है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में मेंटेन होना चाहिए. जितने वैल्यू के डिबेंचर्स आपके आउटस्टैंडिंग है, अगर आपके डिबेंचर आउटस्टैंडिंग 10 लाख रुपए के है तो मिनिमम 25% यानी 2.5 लाख रुपीस का बैलेंस आपके डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में मेंटेन होना चाहिए. आपके डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में मेंटेन होना चाहिए. अब डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में जो हम बैलेंस मेंटेन करते हैं दैट शुड बी 25%. इसके अलावा एक और कंडीशन देखा था कि हर साल के 31st ऑफ मार्च के एंड में जो कुछ भी बैलेंस आउटस्टैंडिंग जो है डिबेंचर जो है वो मैच्योर होने वाले हैं, तो उस साल के पहले महीने की शुरुआत में यानी 30 अप्रैल से पहले जितने वैल्यू के डिबेंचर्स मैच्योर होने वाले हैं उसके 15% वैल्यू आपको कंपलसरी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में साल के पहले मंथ के एंड में ही बाजू में जमा करने होंगे. You have to transfer that amount in debenture redemption reserve.
राइट, यू हैव टू ट्रांसफर दैट अमाउंट इन डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व. ये दो कंडीशन देखी थी रिगार्डिंग creation of debenture redemption reserve. The amount which is transferred in debenture redemption reserve can be utilized only for the repayment of the debenture capital. Debenture redemption reserve में जो हम अमाउंट ट्रांसफर करते हैं उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर रिडम्पशन के लिए किया जा सकता है. राइट, नेक्स्ट. अब 2 पॉइंट हो गए अपने मेजर, 2 पॉइंट हो गए. पहला पॉइंट क्या था? प्रोविजंस एज पर Companies Act 2013. Second was provisions as is given in Companies Rules 2014, rule number 18. Now let's move on to third point, requirements as per SEBI for issue of debenture. Requirements as per SEBI for issue of debentures. We have seen SEBI regulations 2008, SEBI regulations 2009 and SEBI regulations 2015 states various conditions regarding issue of debentures. इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को लेकर बहुत से ऐसे कंडीशंस जो है वो दिए गए हैं. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन. पहला पॉइंट क्या है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन. बताओ अग्रवाल जी, व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स? अगर शेयर्स इश्यू किए जाते तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव होना चाहिए? बताओ. 90%. अगर 90% से कम सब्सक्रिप्शन आता है तो अंडर सब्सक्रिप्शन हो जाता है. अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ तो 90% सब्सक्रिप्शन से कम होता है तो फिर क्या होता है? मैंने 10,000 के शेयर्स इशू किए. आई गॉट सब्सक्रिप्शन ऑफ 8,000 शेयर्स. व्हाट विल हैपन इन दैट केस? अंडर सब्सक्रिप्शन. तो उसका इम्प्लीकेशन क्या होता है? व्हाट डज दैट इम्प्लाई? हाँ, नहीं पता. फिर मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या पता है? क्या अमूरे बता. 10,000 की शेयर्स है, 10,000 शेयर्स में से 8,000 के एप्लीकेशन आए हैं, 90% सब्सक्रिप्शन का कंडीशन मीट नहीं होता. इस केस में क्या होगा? द एंटायर इशू गेट्स कैंसल्ड. सेक्शन किस लिए है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% रिसीव होना चाहिए. 90% का 89% पे 1% भी अगर कम आया, ध्यान दो क्लास में जो कंसेप्ट चल रहे हो, 1% भी अगर कम आता है, एंटायर इशू गेट्स cancelled. The entire issue gets cancelled. That was regarding issue of shares. Now we have a different condition regarding minimum subscription in case of issue of debentures. What is that condition? That condition state minimum of 75% of subscription should be received in case of issue of debentures. Minimum of 75%. Minimum of 75%. Minimum of 75% of subscription should be issued on the issue of debentures. अब बताओ फिर से अग्रवाल, अगर 75% से अगर कम अगर आता है सब्सक्रिप्शन तो इस केस में क्या होगा? The same logic goes here. The entire issue will get cancelled. अगर 10,000 डिबेंचर्स इशू किए हैं, अगर सब्सक्राइब किए गए हैं 7,000, in that particular case, the entire issue of debentures gets cancelled. The entire issue of debentures gets cancelled, right? सो फोर्थ पॉइंट 4.1.3 का ये पहला पॉइंट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन. मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या कहता है? देयर शुड बी एटलीस्ट 75% सब्सक्रिप्शन. देयर शुड बी एटलीस्ट 75% सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड. इफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड, मनी रिसीव्ड शुड बी रिफंडेड विद इन 12 days फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ इशू. जैसे इशू क्लोज होता है और उसके भीतर अगर 75% सब्सक्रिप्शन नहीं आता, उसके भीतर अगर 75% सब्सक्रिप्शन अगर नहीं आता, then in that particular case the entire issue gets cancelled and you have to refund entire money received on debentures within a span of 12 days of closure of issue, right? Next point, देखो SEBI regulation 2008 regulation 12 states that the minimum subscription to be collected by a company. Look into text everyone. As per SEBI, the minimum subscription the minimum subscription for public issue is 75% of the base issue size, that is of rupees 100 crore, right? If minimum subscription is not received, the entire money received should be refunded. The entire money which is received should be refunded within a period of 12 days from the date of closure of the issue, right? Are you okay and fine, right? ये है पॉइंट नंबर 1,
regulation number 1 which is given as per the SEBI Act. Now is this applicable to unlisted company? Is this applicable to a unlisted company? No, this is not applicable to a unlisted company. Next, बताओ अग्रवाल जी, अगर कंपनी 10,000 शेयर्स इश्यू करती है और कंपनी का एप्लीकेशन आते हैं 12,000 शेयर्स के, कैन द कंपनी इश्यू 12,000 शेयर्स? नो. क्या है कंडीशन? ओवर सब्सक्रिप्शन है. तो ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है? अच्छा, जो 2000 जो कैंसिल करेंगे, जिनको हम शेयर्स इश्यू नहीं करेंगे, उनसे कौन सा लेटर भेजते हैं? कौन सा लेटर भेजते हैं? लेटर ऑफ अलॉटमेंट. फिर कौन सा लेटर भेजते हैं? हाँ, कौन सा लेटर भेजते हैं? लेटर ऑफ रिग्रेट. और जिनको शेयर्स अलॉट हुए उन्हें अलॉटमेंट. लेटर ऑफ अलॉटमेंट लिखे क्या? लेटर दोनों में लेटर ऑफ अलॉटमेंट लिखा है क्या? होमवर्क बोला था, कंप्लीट है तुम्हारा लेटर ऑफ अलॉटमेंट? क्यों? हाँ, तो पूछ लेते किसी को. अच्छा, तुम दोनों ही एब्सेंट थे ना, एक दूसरे को पूछते. सॉरी, हाँ, माय मिस्टेक. कशी बरी तब्येत? ओके, सेटल. अच्छा, तो मेरे पास 12,000 एप्लीकेशन है, तो 12,000 एप्लीकेशन को 12,000 लोगों को मुझे अलॉटमेंट करना है. कहना है कर सकता हूं क्या? मेरे पास 10,000 शेयर्स इशू किए हैं, 12,000 एप्लीकेशन आए हैं. कहना है इशू 12,000 शेयर्स. कहना है इशू 12,000 शेयर्स. शिंदे कहना है एक्सेप्शनल केसेस में कौन अगर परमिट करता है तो सेबी परमिट करता है. तो कितना एक्सेस इशू कर सकते हैं आप? 10% ऑफ द इशू. वो भी सेबी अगर परमिट करता है तो मैक्सिमम एक्स्ट्रा और 1,000 शेयर हम इशू कर सकते हैं. आया ना? बोलो भंडारी, बरोबर है क्या? बरोबर है ना कि गलत है? बरोबर है ना? हाँ, ठीक, ओके. मुझे लगा ऐसे. Now let's say the company is issuing 10,000 debentures. Please pay attention. The company is issuing 10,000 debentures. कंपनी अगर 10,000 डिबेंचर्स इशू कर रही है और कंपनी को एप्लीकेशन आए हैं 20,000 डिबेंचर्स के, क्या लगता है what should happen to the excess of 10,000 application? The company has issued 10,000 debentures. The company has received application for 20,000 debentures. What should happen in this particular case? बताओ अग्रवाल जी. 10,000 शेयर्स डिबेंचर्स इशू किए, सॉरी 10,000 डिबेंचर्स इशू किए, 10,000 के बदले में 20,000 एप्लीकेशन आए हैं. तो ऐसे केस में क्या होना चाहिए? 10,000 कैंसिल हो जाएंगे. क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएंगे. Now the condition is far different when it comes to debentures. Excess number of debentures, even then more than the number of debentures issued, can be issued extent of 100% of debentures already being issued. Already debentures कितने इशू किए? 10,000. उसका 100% कितना होता है? 10,000. यानी भले ही आपने इशू ऑफ डिबेंचर्स में 10,000 डिबेंचर्स इशू किए हैं, उसके अलावा एक्सेस और 100% डिबेंचर्स आप इशू कर सकते हो अलॉटमेंट के लिए. देखो टेक्स्ट के ऊपर ध्यान दो. अ कंपनी कैन रिटेन, रीड नीचे देखो, बुक में देखो, डोंट लुक एट मी, किताब में देखो. कंपनी कैन रिटेन ओवर सब्सक्रिप्शन मनी. कंपनी कैन रिटेन ओवर सब्सक्रिप्शन मनी. द कंपनी कैन रिटेन ओवर सब्सक्रिप्शन मनी अप टू मैक्सिमम 100%. देखो, of the base issue size or lower unit as may be specified in the offer letter or offer or prospectus. क्या दिया है वहां पर? A company can retain over subscription. Under subscription बोला है क्या? Over. A company can retain मतलब रख सकती है, नहीं रख सकती है? रख सकती है. A company can retain
ओवर सब्सक्रिप्शन मनी अप टू मैक्सिमम ऑफ 100% ऑफ द बेस इश्यू साइज। तो मेरा बेस इश्यू साइज कितना है डिबेंचर्स का? 10,000। मुझे अगर 25,000 डिबेंचर्स के एप्लीकेशन आए तो मैं कितने डिबेंचर्स रख सकता हूं? 10,000 ओरिजिनल इश्यू के, ओवर सब्सक्रिप्शन के 10,000, पूरे मिलाकर 20,000। बचे हुए 5,000 मुझे वापस रिटर्न करने ही पड़ेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर्स एंड शेयर्स। ओके, 100% of the base issue size or any lower unit as may be specified in the offer letter or letter of offer or prospectus। अगर ऑफर लेटर या लेटर ऑफ ऑफर में स्पेसिफिकली दिया है, in case of over subscription the company will not accept a single applicant over and above the number of debentures being issued, then in that case 10,000 से ज्यादा के डिबेंचर्स कंपनी इश्यू नहीं कर सकते। अगर ऑफर लेटर में दिया है, in case of over subscription the company might issue up to 100% of debentures of the existing base issue, then in that case excess issue of debentures can be done। Next point here is underwriting। मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन जैसे शेयर्स के ऊपर है, वैसे ही मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन और वो खतरे की तलवार डिबेंचर्स के ऊपर भी है। अगर 10,000 में से 7,500 डिबेंचर्स नहीं खरीदे गए, द एंटायर इशू गेट्स कैंसल्ड। हाँ या ना? So we also need an underwriter to regulate all the issue procedure regarding a debenture and also take a guarantee of minimum subscription। हम डिबेंचर्स तो इशू करें लेकिन हमें गारंटी नहीं है कि 75% सब्सक्रिप्शन आ जाएगा, तो ऐसे केस में हम अंडरराइटर बतौर किसी एक मर्चेंट बैंक को अपॉइंट करते हैं जो गारंटी लेता है कि 75% जो है सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। और अगर 75% सब्सक्रिप्शन हो जाता है, देन इन दैट केस द इशू प्रोसीड्स आर ओके। लेकिन अगर 75% नहीं होता है तो जितना शॉर्टफॉल रहेगा उतना सारा सब्सक्रिप्शन कौन करेगा? वो मर्चेंट बैंक। और ये सारा काम करने के लिए उन्हें क्या मिलता है? अंडरराइटिंग कमीशन। और जिस एग्रीमेंट के बतौर वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का प्रॉमिस करते हैं, जिस एग्रीमेंट के बतौर वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का प्रॉमिस करते हैं, उसे कहते हैं हम अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। व्हाट डू वी कॉल इट एज? अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। A company can enter into underwriting agreement with underwriters for its public issue of debentures। Appointment of underwriters must be mentioned in the offer letter or letter of offer or prospectus। और जो underwriter हमने अपॉइंट किया है, whosoever underwriter is being appointed, the name of that particular underwriter should be mentioned in the letter of offer, offer letter or prospectus। Are we okay and clear? Are we okay and clear? Clear? Last point, credit rating। अगला पॉइंट क्या है? क्रेडिट रेटिंग। व्हाट डू मीन बाय क्रेडिट रेटिंग? अच्छा, आप में से कितने लोगों ने ईएमआई पे कोई चीज खरीदी है, खुद जाकर या पेरेंट्स के साथ जाकर? ईएमआई पे। मेरी जिंदगी तो ईएमआई है, गरीब आदमी हूं मैं बहुत। हाउ दैट आई एम अ वेरी 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 पुअर फेलो, सो ऑलवेज गो एंड बाय थिंग्स ऑन ईएमआई। मेरे जितना गरीब आदमी कोई नहीं है दुनिया में, हो इसमें, है ना? अच्छा, किसी ने खरीदी है क्या? Has anyone bought anything going along parents or going along friends or going alone and buying something on EMI? कुछ खरीदा है क्या किसी ने? नहीं? अच्छा ठीक है। Come to point, let's for example say कि हमारा दुरू सानू लेट्स से हमारे अजमेरा जी है, अजमेरा जी जाते हैं और अजमेरा जी जाकर आईफोन 12 खरीदना चाहते हैं। वांट्स टू बाय आईफोन 12। दीदी, व्हाट इज द प्राइस ऑफ आईफोन 12? आईफोन 12 का प्राइस कितना है? आईफोन 12 का प्राइस कितना है? हाँ, तुम्हारा जो 12 है वो, हाँ कितने का है? हाँ तो कितने का है वो 12 प्रो मैक्स? ओ किती असते तरी शून्य? 12 प्रो मैक्स कितना बोला दीदी?
1,00,000 बरोबर है ना? सही लिखा ना प्राइस मैंने? हाँ हाँ, अच्छा सॉरी, मेरे को इतनी आदत नहीं ना बड़े बड़े आदत। 1,40,000, ठीक है। ये खास था, हमारा भाई बोल रहा 1,40,000 11वीची फीस, 12वीची फीस, फाउंडेशनची फीस आणि सीएचा रजिस्ट्रेशन पण होऊन जाते म्हणे। सही आहे, 11वीची फीस, 12वीची फीस, फाउंडेशनचं रजिस्टर, फाउंडेशन सगळं निपटून जाते आमचं एक मोबाईल मध्ये, है ना? है ना भाई? सही है, सही है भाई। 1,40,000। आज मेरा भी बड़ा आदमी है एकदम। आज मेरे जी बोला कि अभी मेरे को भी iPhone 12 लेना है। अब घर वाले तो बोले कि इतने पैसे तो नहीं है, ऊपर के 40,000 दे देंगे, बाकी तो तेरा मैनेज कर। जुगाड़ तो करने में आज मेरा माहिर है। बोले कि अब मेरे पास आए, बोला सर कुछ तो जुगाड़ बताओ, कुछ तो जुगाड़ बताओ और जुगाड़ कराओ। मैं कहा तेरे पास 40,000 रुपए है ना? मैंने कहा हाँ। तो एक काम करिए, 40,000 रुपए ले, 40,000 रुपए भर दे और बचे हुए 1,00,000 रुपए का तू EMI करवा ले। 0% EMI का स्कीम तो चल ही रहा है HDFC का। तो अजमेरा जी बोले ठीक है। मैंने कहा चलो सोनू भैया के पास आजूबा पे, वहां गए और वहां जाकर पूछे कि भाई ऐसे आईफोन हमारे अजमेरा जी को लेना है। अब वो बिलो एज है, अंडर एज, नॉट 18, तो बट इज नॉट कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। तो कहा कि भाई दिनेश सर इसके नाम पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता और ना ही ये कोई लोन अपने नाम पे ले सकता है, बिकॉज ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ही इज वेरी माइनर, वेरी वेरी माइनर, ही इज वेरी माइनर। तो मेरे कहा कोई बात नहीं, एक काम करो मेरे नाम पे ही लोन दिलवा दो, EMI मेरे अकाउंट से कटता रहेगा। प्लीज पे अटेंशन, कंसेप्ट ही चालू है। मैंने कहा मेरे नाम पे EMI कटता रहेगा। तो कहा ठीक है। मैंने कहा 40,000 का हम इसमें डाउन पेमेंट करवा देते हैं, बचे हुए 1,00,000 रुपए, बचे हुए 1,00,000 रुपए जो है अगले 12 महीनों के इंस्टॉलमेंट में या 12 EMI में हम रिपे कर देंगे। तो ने कहा ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड द पॉइंट, व्हेन यू हैव टू टेक थिंग्स ऑन क्रेडिट, जब कभी भी चीजें आपको क्रेडिट पे लेनी होती है, सबसे पहले आपका जो चीज चेक किया जाता है वो है सिबिल। ये वर्ड सुना है सिबिल? सिबिल कितने लोगों ने सुना है? सिबिल कितने लोगों ने सुना है? कितने लोगों ने सुना है? रेज योर हैंड, बोलो मत बोलो, ऐसे हाथ ऊपर करो। सिबिल मतलब क्या सुना? कितने लोगों ने हाथ ऊपर करो। एक मात्रा है, मात्रा को छोड़कर किसी ने सुना? गर्ल्स में किसी ने सुना है सिबिल? वर्ड सिबिल एक मात्रा ही है। अच्छा क्या सुना है सिबिल के बारे में? Exactly. Now understand. Now very different practical concept, not given in a textbook. Trying to explain you something very related and practical to the market. Practical समझाना वैसे मेरी आदत है, practical demo जरूरी है. So understand practical experience. When you go and buy things in market, जब मार्केट में जाते हो चीजें खरीदते हो या फिर कोई चीज के लिए आप बोरो करना चाहते हो, स्पेशली बैंक से या इंस्टीट्यूशन से, these are practical things which are not given in textbook but have to be understood compulsorily. क्योंकि आगे चल के, आज नहीं कल को चलकर आपको भी कोई ट्रांजैक्शन या व्यवहार करना होगा तो वहां आपको पूछ ले सिबिल क्या है, यू शुड नॉट बी ब्लैंक नो। सो हर चीज का प्रैक्टिकल डेमो या एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अब जाते हैं, मुझे अजूबा वाले नेक्स्ट बोलेंगे आपका पैन कार्ड बताइए। पैन कार्ड से सिबिल का स्कोर पता चलता है, बिकॉज पैन कार्ड कीप्स अ ट्रैक ऑन ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस वी डू। आपने कितने लोगों को चेक दिया है, कितने लोगों का चेक बाउंस किया है, कितने बैंकों से लोन लिया है, उसके कितने EMI पे किए, कितने EMI डुबाए हैं, कितना इंटरेस्ट पे किया है, कितना टाइम टू टाइम पेमेंट किया है, हर चीज का, हर आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी का प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो आपके पैन कार्ड पे पता चलता है। मेरे इसमें ज्यादा लोन का नहीं है, बस वो BMW का उतना EMI जाता है, बाकी कुछ नहीं, वो टाइम टू टाइम कटते रहता है। यू जस्ट टेक माई पैन कार्ड, just put the PAN card details
एंड एज सुन एज यू एंटर देयर इज अ प्रॉपर वेबसाइट, देयर आर डिफरेंट वेबसाइट जहां से आपको सिबिल का स्कोर पता चलता है। जैसे ही वेबसाइट पे जैसे मेरा पैन कार्ड का डिटेल डाल लेंगे, दे विल गेट द डिटेल्स ऑफ माय सिबिल स्कोर। मेरा सिबिल का स्कोर उन्हें बड़े आसानी से पता चल जाएगा। नॉर्मली जब 1 लाख रुपए का लोन होना चाहिए तो आपको 800 प्लस आपका सिबिल का स्कोर होना चाहिए। रेगुलर 30-40 हज़ार का मोबाइल अगर आप लो तो उसका 650 का सिबिल स्कोर वो चेक करते हैं। अगर इतना मिनिमम सिबिल का स्कोर रहता है तभी जाकर आपको चीजें जो है वो EMI पे मिलती है। 650 द बेसिक स्कोर, जो नॉर्मली इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन नहीं करते लेकिन जिन लोगों का पैन कार्ड है उसके 650 आ जाता है। उसके बाद जिन लोगों ने लोन लिया है, लोन का रिपेमेंट टाइम से किया है, इंटरेस्ट उसका टाइम टू टाइम किया है, किसी का चेक बाउंस नहीं करवाया, कोई गलत व्यवहार नहीं किया है, हर एक ट्रांजेक्शन को इन टाइम और प्रॉपरली किए हैं, इन लोगों का सिबिल स्कोर बढ़ता जाता है। मेरे डैड का सिबिल स्कोर इज मोर देन 5000। तो सिबिल स्कोर अगर अच्छा हो तो इस पूरे इंडिया में आपको कहीं पर भी किसी भी जगह पर कोई भी लोन लेने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, किसी भी तरह का लोन प्रॉब्लम नहीं होता। मैंने आपको बहुत अच्छी चीज शायद कुछ दिन पहले बताई थी। सबसे पहली बात, लोन आप अभी के इस दौर में अगर हम देखें तो लोन लेना नहीं चाहिए। अगर लोन लेते हो तो एक बार नहीं 100 बार खुद से पूछना चाहिए क्या हमारी रिपेमेंट कैपेसिटी है क्या, कैन वी रियली रीपे एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वी आर बोरोइंग। आप लोन नहीं लो तो अच्छा है, अगर लोन लेते हो तो उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी सोचकर समझकर ही लोन लेना, क्योंकि लोन लेकर अगर आप रीपे नहीं कर पाते तो कल को आप बहुत से प्रॉब्लम में हो जाते हो। नॉर्मली बॉयज के साथ ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। अभी कुछ नहीं, जैसे जैसे थोड़े से ग्रेजुएशन लेवल में और में जाते हैं तो जरूरतें एक से ज्यादा बढ़ने लगती हैं, 1 से 2 लोगों की जरूरतें बढ़ने लगती है, तो इधर से खर्चा उधर से खर्चा, सब जगह से खर्चा हो आज मेरा सब जगह से खर्चा लगने लगता है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस जुगाड़ लगाना पड़ता है पैसे का। मैंने खुद ने जुगाड़ किया, कितने मोबाइल लिए EMI पे, बहुत सी चीजें EMI पे ली, बाद में पेमेंट ही नहीं किया। तो वो तब स्टूडेंट लाइफ में अपने को समझ में नहीं आता है, हम ले लेते हैं ऐसे EMI पे चीजें, लेकिन जब उसका रीपेमेंट नहीं करते ना उसकी मार बाद में पड़ती है। शुरुआती दौर में जब 650 स्कोर था, मेरा स्कोर 600 हो चुका था, क्योंकि मैंने शायद कुछ तो 1-2 मोबाइल कुछ तो लिया था चीजें EMI पे, उसका रीपेमेंट ही नहीं किया था ठीक से, टाइम से, मतलब किया था पेमेंट लेकिन टाइम पे नहीं किया था। पैसा तो किसी को नहीं छोड़ते हो, पैसा तो किसी को नहीं छोड़ते, बैंक है वो, पीछे लग के क्यों ना लेकिन पेमेंट लेते। तो अगर आप पेमेंट करने में डिले करते हो तो भी आपका सिबिल का स्कोर कम हो जाता है। बाद में एक बड़ा लोन जो मेरे बिजनेस के अंदर था तो वो उसका ऑटोमेटिक रिपेमेंट हुआ, तब जाकर स्कोर डेवलप होने लगा। तो सिबिल स्कोर इज द क्रेडिट स्कोर विच इज टू बी चेक्ड। सिबिल का ये जो क्रेडिट स्कोर है ये चेक क्यों किया जाता है? टू चेक द क्रेडिटेबिलिटी ऑफ द पर्सन। जो व्यक्ति पैसे बोरो कर रहा है, क्या उस व्यक्ति की रीपेमेंट कैपेसिटी है क्या? जिस व्यक्ति का सिबिल कम है, इसका मतलब क्या है, इस व्यक्ति ने ऑलरेडी बहुत जगह से पैसे ले रखे हैं और वही पैसे नहीं लौटाए, तो क्या ऐसे व्यक्ति को और लोन बैंक देने में इंटरेस्टेड रहेगी? नहीं। थंब रूल इज बैंक ऑलवेज वांट्स टू विन। बैंक को हमेशा जीतना है। बैंक इज नॉट रेडी एट ऑल। बैंक इज नॉट रेडी टू लेंड अ सिंगल रुपी टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, है ना? When bank is not ready to lend a single particular person, that person cannot get loan. So ये सिबिल जो है इसे हम कहते हैं क्रेडिट रेटिंग ऑफ एन इंडिविजुअल। आर गेटिंग माय पॉइंट? सिबिल का मतलब होता है क्रेडिट रेटिंग। अभी ओके? ठीक उसी हिसाब से बोरो करने के लिए इंडिविजुअल्स को या सोल प्रोप्राइटरशिप्स को सिबिल का स्कोर निकालना जरूरी है, उनका सिबिल का स्कोर चेक किया जाता है। ठीक उसी हिसाब से डिवेंचर इज ओन्ड कैपिटल और बोरोड कैपिटल, ओन्ड कैपिटल और बोरोड कैपिटल, ओन्ड बोरोड कैपिटल। ओके, सो whenever you are borrowing capital, when you are borrowing capital, there is risk of repayment. There is risk of repayment which can be thought by the debenture holders. Debenture holders के मन में एक रिस्क हो सकता है कि क्या पता रीपेमेंट होगा या नहीं होगा। तो ऐसे केस में, in that particular case, every company, now this is a SEBI regulations, now this is applicable to every listed company. Every listed company before making issue of debentures has to compulsorily obtain its credit rating. तो हर एक जॉइंट स्टॉक कंपनी, लिस्टेड जॉइंट स्टॉक कंपनी जो अपने डिबेंचर्स को इशू करने वाले हैं,
they have to compulsorily obtain the credit rating. अब जॉइंट स्टॉक कंपनी को जो क्रेडिट रेटिंग मिलने वाली है, जॉइंट स्टॉक कंपनी को जो क्रेडिट रेटिंग मिलने वाली है, दैट क्रेडिट रेटिंग इज गिवन बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज. जैसे क्रिसल, CRISL इज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, जो आपके कंपनी के फाइनेंशियल्स और सभी चीजों को इन डेप्थ इन्वेस्टिगेट, सुपरवाइज और चेक करके आपके कंपनी को क्रेडिट रेटिंग देंगे. और जब कभी भी प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है ना, तो वाइल इशूइंग प्रोस्पेक्टस, जैसे डिबेंचर ट्रस्टी का नाम मेंशन होना चाहिए, ठीक उसी हिसाब से कंपनी की क्रेडिट रेटिंग जो है वो भी उस प्रोस्पेक्टस के ऊपर मेंशन चाहिए. नाउ आई एम a person who is ready to buy the debentures and lend money to the company, but I want to know about the risk portfolio of the company. कंपनी कितनी रिस्की है, कंपनी कितनी रिस्की नहीं है, उसके बारे में मुझे जानना है. ये जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि कंपनी अगर थोड़ी ज्यादा रिस्की है तो आई वुड एक्सपेक्ट मोर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. इफ द कंपनी इज लेस रिस्की, it is very prompt in repaying debts. Now in that particular case I will be expecting less interest on the debentures issued by the company, right? और कोई कंपनी बहुत ज्यादा रिस्की है तो ज्यादा रिस्क है तो ज्यादा प्यार है ना, रिस्क है तो इश्क है. कोई कंपनी ज्यादा रिस्की है तो उसके ऊपर ज्यादा जो है इंटरेस्ट हम एक्सपेक्ट करने वाले हैं, राइट? नाउ क्रिसिल के बारे में जो बताया, क्रिसिल क्या करता है, आपके सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करता है. आपने कितने लोन लिए हैं, कितना का पेमेंट किया है, कितना बोरोइंग है, कितने प्रेफरेंशियल होल्डर है, किसका पेमेंट कैसे किया है, इंटरेस्ट का पेमेंट कैसे किया, आपके सारे फाइनेंशियल्स को इन्वेस्टिगेट और चेक करने का काम जो है क्रिसिल करता है. और सारे फाइनेंशियल्स पास्ट ईयर्स के चेक करने के बाद आपको क्रेडिट रेटिंग दी जाती है. पिछले 3 साल के सारे रिकॉर्ड चेक किए जाते हैं. पिछले 3 साल के जो रिकॉर्ड चेक करने के बाद आपकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, उस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के मुताबिक आपको जो है वो रेटिंग दी जाती है. जैसे क्रिसिल ट्रिपल ए, क्रिसिल ट्रिपल ए इज गिवन टू द हाईएस्ट सेफ्टी, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलेस्ट, ब्यूटीफुल, फुलेस्ट, जैसे ना हाई, हायर, हाईएस्ट, वैसे हाई, हायर, हाईएस्ट, हाईएस्ट सेफ्टी, सबसे सेफ कंपनी. मतलब ये ऐसी कंपनी है, क्रिसिल ट्रिपल ए का अगर रेटिंग अगर कंपनी के प्रोस्पेक्टस पे है, डिबेंचर के प्रोस्पेक्टस, का मतलब क्या है, ये कंपनी पैसे लेंड करने के लिए सबसे सेफ कंपनी, हाईली सेफ, यानी इस कंपनी में कभी भी आपका पैसा नहीं डूबेगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और वही क्रिसिल डी रहा तो प्रोस्पेक्टर पे क्रिसिल डी, ये एक डिफॉल्टिंग कंपनी है. इन्होंने ऑलरेडी पहले कभी डिबेंचर्स इशू किए थे, उसी का प्रिंसिपल अमाउंट उन्होंने पेमेंट करने में या उसके ऊपर का इंटरेस्ट पे करने में कहीं ना कहीं डिफॉल्ट किया है. क्रिसिल डी, डी मतलब डिफॉल्ट, डी मतलब डिफॉल्ट, डी से प्रॉब्लम है, डी मतलब डिफॉल्ट, डी मतलब डिफॉल्ट. अगर क्रिसिल डी है प्रोस्पेक्टस पे, डी मतलब डिफॉल्ट, ऐसी कंपनी वो है जो पैसा डुबाती है. तो ऐसे कंपनी के इसके डिबेंचर्स कभी नहीं लेने चाहिए. कॉन्सेंट्रेट ऑन ए, क्रिसिल ए. क्रिसिल ए is a company which is highly safe, a company which is highly safe. जिस क्रिसिल कंपनी का ट्रिपल ए रेटिंग रहेगा, ऐसे कंपनियों में पैसा लेंड करो अगर, तो कोई भी आपको रिस्क नहीं है. लेकिन अगर कोई कंपनी का रेटिंग डी है, क्रिसिल डी है, तो यू माइट गेट इनटू प्रॉब्लम, क्योंकि ऐसी कंपनी एक डिफॉल्टिंग कंपनी है जिन्होंने ऑलरेडी पैसे बोरो करके रीपेमेंट इन लोगों ने नहीं किया. तो बड़ा हंसरा बेल. क्रिसिल ए हाई सेफ्टी, क्रिसिल ए adequately safe, क्रिसिल बी moderate safe, क्रिसिल बी high risk, क्रिसिल सी very high risk, and क्रिसिल डी default. क्रिसिल डी क्या है? default. क्रिसिल डी क्या है? default. Now these are various credit rating which will be given to the company after investigation of the financial statements by the CRISIL or credit rating agency. So every company issuing debentures has to obtain credit rating from the various credit rating agencies, and that credit rating which is obtained by the different companies from the credit rating agencies has to be mentioned on the prospectus. तो आपको ज्यादा अंदर इंफॉर्मेशन तक जग करने की जरूरत ही नहीं. क्रेडिट रेटिंग देखो आपको सब समझ में आता है, क्रेडिट रेटिंग देखो आपको सब समझ में आता है, क्योंकि क्रेडिट रेटिंग देने वाली कंपनियां कौन है? एक वॉलंटरी कंपनी, लेकिन ये एक लिस्टेड कंपनी के लिए कंपलसरी है.
अनलिस्टेड कंपनी के लिए क्रेडिट रेटिंग लेना कंपलसरी है क्या? नहीं, राइट। सो ध्यान किस पे है? क्रिसल ट्रिपल ए, और जो क्रिसल डी रहेगा उसकी कंपनी के डिबेंचर्स कभी नहीं लेना है, राइट राइट, ओके, क्योंकि डी वाले में रिस्क है। सेबी रेगुलेशंस 2018 states that the company should get credit rating for issuing debentures. For issuing debentures, every company, listed company which has to issue debentures has to get credit rating. As per SEBI, companies making a public issue or a right issue of convertible debentures must obtain credit rating from one or the more credit rating agencies. हमारे पास क्रिसल है, केयर है, ये ऐसे एजेंसीज है जो क्रेडिट रेटिंग देने का काम करते हैं, right? The rating should be mentioned in the offer letter or letter of offer or prospectus, right? Offer letter, letter of offer or prospectus. Now credit rating, अब ये 2 पॉइंट बचे हैं सिर्फ, लास्ट 2 पॉइंट्स। क्रेडिट रेटिंग, rating given to the debt securities by the credit rating agency which indicates the credit risk level. क्रेडिट रेटिंग क्या है? द रेटिंग विच इज गिवन बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के द्वारा जो रेटिंग दी जाती है दैट इज कॉल्ड एज क्रेडिट रेटिंग, एंड दैट क्रेडिट रेटिंग शुड बी मेंशन्ड, दैट क्रेडिट रेटिंग शुड बी मेंशन्ड ऑन ईच एंड एवरी प्रोस्पेक्टस, लेटर ऑफ ऑफर और ऑफर लेटर विच इज यूज्ड फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स। नेक्स्ट पॉइंट, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। Agencies like Crisil, Care, etc., which rates the credit worthiness of the company issuing debenture, deposits or debt securities. क्रेडिट रेटिंग एजेंसी वो एजेंसीज है जो क्रेडिट रेटिंग देने का काम करते हैं। हमारे यहाँ क्रेडिट रेटिंग देने का काम कौन कौन करता है? क्रिसल, केयर, and there are several other organizations which are involved in giving credit rating to a joint stock company, right? अभी लास्ट के 2 पॉइंट यहाँ पे खत्म हुए हैं। So what we see is this brief view of the provisions of issue of debentures. This is my last point of explaining. Companies Act 2013. Companies Act 2013 के क्या क्या conditions है? No voting rights, types of debentures, payment of interest and redemption, debenture certificate, credit debentures resumption reserve, appointment of debenture trustee approaching NCLT, imposing of restriction and punishment for contravention of provision of Companies Act. Next, Company Rules 2014. कंपनी, अब यहां पर देखो बोनस का कोई सवाल नहीं है। बोनस शेयर के क्या बोनस चाहिए? हाँ चाहिए, बोनस दूं देखो, चाहिए बोनस चाहिए। कंपनीज रूल 2014. What is Companies Rule 2014? There are 4 conditions in Companies Rule 2014. What is the first point? Tenure of secured debentures. What is the first point? Tenure of secured debentures. Second, create a charge on the assets of the company. Third, appointment of debenture trustees. Next, creation of debenture redemption reserve. Next, minimums. Now there are conditions. रुको, बोनस में क्या हुआ? बोनस में अभी ये सेबी के रेगुलेशंस भी है, लेकिन ये बोनस की जो सेबी रेगुलेशंस है दीज आर एप्लीकेबल ओनली टू अ लिस्टेड कंपनी। कंपनीज रूल 2014, रूल नंबर 18, कंपनीज एक्ट 2013, section number 71 are applicable to all types of company whether it is being listed or unlisted. But the SEBI regulation 2008, SEBI regulation 2009 and SEBI regulation 2015 are applicable only to a listed company. तो ये बोनस में है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, रिटेंशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडरराइटिंग एंड क्रेडिट रेटिंग। Are we clear? Are we clear? Are we clear? Are we clear? Okay, there are 10 minutes. I'm sitting here. I will ask anybody all these conditions. 10 मिनट में कंप्लीट करो, चलो।